Good evening, student. Till now, we saw that what is the philosophy of the Constitution? What is the philosophy of the Constitution? Through two means. One is from the ideas of the leaders, and another is by the preamble of the Constitution. Now we will see the topic institutional design. How the institution is designed in our country. Institution to run the government. See, a constitution is not merely a statement of values and philosophy. यह values और philosophy का एक केवल statement नहीं है. It's not a merely the statement of values and philosophy. As we noted above, a constitution is mainly about embodying these values into institutional arrangement. Constitution जो है इन values को institution में convert करने की व्यवस्था. Constitution यह केवल values और philosophy को ही नहीं बताता है. Now the question is, what are the values and philosophy of the Constitution? The values and the philosophy of the Constitution is that India is a sovereign, secular, democratic, republic, socialist country. These are the values and philosophy. We will follow the equality, liberty, fraternity. All these are the values and philosophy. But the Constitution is not about only these values and philosophy. In the Constitution, there is an arrangement of different institutions to convert these values into action. As we have noted above, the Constitution is mainly about embodying these values into institutional arrangement. Much of the document called Constitution of India is about this arrangement. Constitution जो हमारा इन गाइडिंग फिलॉसफी को अप्लाई करने में इस व्यवस्था को इंस्टीट्यूशन में बदल करके और लागू करने में विश्वास रखता है और लागू करने की व्यवस्था देता है. It is a very long and detailed document. Constitution is a very long and detailed document. Therefore, it needs to be amended quite regularly to keep update. इसको अपडेट करने की ज़रूरत है बिकॉज क्योंकि काफ़ी लंबा और बृहद डॉक्यूमेंट है. इसको समय और परिस्थितियों के आधार पे इसको हमेशा चेंज करने की, परिवर्तन करने की ज़रूरत है ताकि यह अपडेट हो सके. Those who crafted the Indian Constitution felt that it has to be according with people's aspiration and changes in society. जो भारतीय संविधान का निर्माण किए, क्राफ्ट किए, इसको बनाए, उनका भी ऐसा मानना था that it has to be accordance with people. यह लोगों की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए. People's aspiration, लोगों की आकांक्षाओं के अनुसार होना चाहिए. एंड चेंजेज इन सोसाइटी, और समाज में बदलाव के साथ इसे भी अपने आप में बदलाव कर लेना चाहिए. They did not see it as a scared, static and unalterable law. वह इसे ऐसे नहीं देखे कि यह एक बहुत पवित्र और बिल्कुल स्टैटिक है, एक निश्चित है, मैंने कि एक जगह पर रहने वाला है, एंड अनअल्टरेबल ना, और इसको बदला न जा सके. उन्होंने कभी भी ऐसे नहीं देखा कि यह एक पवित्र है और क्या है, स्टैटिक है और अनअल्टर्ड लॉ है. सो दे मेड प्रोविजन टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस. उन्होंने व्यवस्था की कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव भी कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि अगर आप ज़रूरत पड़े तो उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं. सो दे मेड प्रोविजन टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम. समय समय तक आप उसमें बदलाव कर सकते हैं. समय के अनुसार ज़रूरत पड़ने पर बदलाव किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में. These changes are called the constitutional amendment. और इस प्रकार के परिवर्तन को constitutional amendment कहते हैं, संविधान संशोधन कहते हैं. The Constitution describe the
इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट इन वेरी लीगल लैंग्वेज। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह डिस्क्राइब करता है इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट की कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन रहेंगे, कैसे ये वर्क करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर दीज इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट? दीज अरेंजमेंट आर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, legislature, executive, judiciary, these all are the different institution. If you read the constitution for the first time, it can be quite difficult to understand. अगर आप पहली बार पढ़ें तो शायद आपके लिए परेशानी हो समझने में. Yet the basic institutional design is not very difficult to understand. लेकिन जो इसकी जो बेसिक बात है वो बहुत डिफिकल्ट नहीं है. लाइक एनी कंस्टिट्यूशन, द इंडियन कंस्टिट्यूशन लेज डाउन द प्रोसीजर टू चूज पर्सन टू गवर्न द कंट्री. दूसरे कंस्टिट्यूशन के अनुसार जैसे दुनिया के और भी बाकी कंस्टिट्यूशन करते हैं, उसी प्रकार भारतीय संविधान भी इस बात पर लिखा गया है, ये चीज़ उसमें इंगित की गई है कि भारत की जो गवर्नमेंट है वो कैसे चुनी जाएगी या कौन कंट्री को रूल करेगा, कैसे शासन के चुनाव की पद्धति के बारे में जानकारी देता है. Constitution lays down the procedure for choosing person to govern the country, कि वह व्यवस्था देता है कि किस प्रकार से हम लोगों का चुनाव करें जो कंट्री को चला सके. It define who will have how much power to take which decision. यह बताता है कि who will have how much power, किसके पास कितनी शक्ति होगी to take which decision, कौन किसके पास सत्ता हो, किसके पास वो शक्ति होगी कोई पर्टिकुलर डिसीजन लेने के लिए. मीन्स सबकी जो व्यवस्था है, सबकी जो शासन की व्यवस्था है उसको सुनिश्चित करता है. इट डिफाइन हु विल हैव हाउ मच पावर टू टेक विच डिसीजन एंड इट पुट लिमिट टू व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू बाय प्रोवाइडिंग सम राइट्स टू द सिटीजन दैट कैन नॉट बी वायलेटेड. इन स्पाइट ऑफ द गवर्नमेंट अरेंजमेंट, Constitution give the fundamental rights, give some right to the citizen which cannot be violated by the rulers, and put limit to what the government can do by providing some right to the citizen. यह नागरिकों को अधिकार भी देता है कि ये आपका अधिकार है, इसको कोई वायलेट नहीं करेगा. सो ये रूलिंग जो एलाइट है उनके ऊपर एक लिमिट भी डालता है कि आप इस अधिकार का हनन नहीं करेंगे. ये अधिकार नागरिकों को दिए गए. द रिमेनिंग 3 चैप्टर इन दिस बुक आर अबाउट these 3 एस्पेक्ट ऑफ वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आगे के चैप्टरों में हमें इन सब के बारे में, इंस्टीट्यूशन के बारे में, राइट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. we shall look at some key constitutional provision of each chapter and understand how many work in democratic politics. और देखेंगे कि क्या क्या कार्य डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में होता है. But this textbook will not cover all the silent feature of the institutional design in the Indian Constitution. Some of other aspects will be covered in your textbook next year. कुछ पोर्शन हम इस साल स्टडी करेंगे, कुछ पोर्शन अगले साल क्लास 10th में स्टडी करेंगे. So that's all for today.